Good morning student, this is Sanjay Rahi and today we will see the cardiovascular system or the blood circulatory system. Now there is a question comes in our mind that why this is needed, why this blood circulation is needed. You know that we are multicellular organism, we are made up of many cells, so there is a continuous need to transport different kinds of material including food, excretory material, waste, water, ions and lot more. So we require a circulatory system where these material can be transported. So dear student, have a look over the blood circulatory system. The main organ of blood circulatory system is the heart. तो अगर आपको याद होगा, आपको पता होगा कि there is a heart in our body. Actually heart is a pumping machine that pumps the blood in the different parts of the body. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि how the heart is pumping the blood to the body and the deoxygenated blood how it is coming to the body. So we'll make a look over this diagram. What is the position of this heart? Generally it seems to be toward the left side, but technically it is at the center of the thoracic cavity. Center of the thoracic cavity. तो इसकी जो position है वो कहाँ पे आपकी center of the thoracic cavity. This is the external view of the heart. You can see easily. Actually heart is divided into 4 chambers. Already I have told you that it is present at the center of the thoracic cavity, but if you just observe here the lower notch, heart की जो निचला point है, actually it is toward the slightly toward the left side, so it appear more toward the left side. So when heart beats, we can easily observe the beat toward the left side. However position की अगर हम बात करें तो heart is present at the center of the thoracic cavity. So my dear student, this heart basically it is divided into 4 chamber. इसके अंदर जो होते हैं टोटल 4 चैम्बर जो वो रहते हैं. अगर मैं यहाँ पे इस व्यू को अगर आप देखें, the upper chambers, the upper one, the upper chambers, these are known as the auricle. There are 2 chambers at the upside, that is called as the auricle, and the 2 chamber at the lower side, that is called as the ventricle. अगर मोटा मोटा बताऊँ तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, this is the ventricle, और ये जो पोर्शन है this is the auricle or the atrium. So dear student, अगर हम देखें यहाँ पे lot of blood vessels are actually, see how एक मशीन की तरह heart, definitely it is a pumping machine. You can see lot of connection over here. अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे, ये देखिए. So अगर इसका जो externally अगर मैं बताऊँ तो तुम्हें ये जो आप देख पा रहे हैं, this is a major artery and this is called as aorta. ये जो aorta है इसमें से कई vessels जो हैं, arteries जो वो निकलती हैं, and it supply oxygenated blood to the different parts of the body. Oxygenated blood जो है वो different parts of the body को पहुंचाती हैं aorta. However अगर आप ये देखिए, अगर आप इस duct को देखें यहाँ पे auricle के साथ जो attach है, यहाँ पे ये देखें, यहाँ से देखिए ये auricle के साथ में attach है. Basically this is the left side. ये जो duct है नीचे से भी है open और ऊपर से भी है. This is called as the vena cava. This is superior vena cava and this is inferior vena cava. Both are vena cava, both are interconnected with the upper chamber, that is the right atrium. ये right atrium के साथ में यहाँ पे जो connected है. इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पे, if you just observe here, this is the pulmonary artery. This is the pulmonary not artery. This is ये जो दो आपको ये पेयर में जो दिखाई दे रही है, this is pulmonary vein. This is pulmonary vein. और ये pulmonary vein क्या है बेसिकली अगर आप देखें, it carry oxygenated blood to the heart. तो जो लंग से जो फिल्टर होगा ब्लड वो इसी के रास्ते से अंदर आ जाएगा. और इसके ऊपर अगर आप देखें ये वाली ये जो डक्ट है, दिस इज पल्मोनरी आर्टरी. ये जो है दिस इज द पल्मोनरी आर्टरी. ये लंग्स को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी आउट करती है. चलिए इसके बारे में हम फर्दर स्टडी करेंगे अभी. दिस इज द ओवरऑल व्यू ऑफ दिस हार्ट. सो यू कैन सी हियर दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल. यहाँ अगर आप यहाँ पे देखें दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल, देन दिस इज द राइट वेंट्रिकल. ये जो आपकी ये वाली साइड जो है राइट वेंट्रिकल है, ठीक है. दिस वन इज योर राइट एट्रियम. दिस इज योर राइट एट्रियम. सी
This is right atrium, and this one is your this is your pulmonary artery. ये pulmonary artery आपकी, ठीक है. These are your pulmonary vein. ये आपकी pulmonary vein है. Okay. This is left ventricle, right ventricle, and okay. So there are certain vessels are coming. This is your superior vena cava. ये वाली जो है superior vena cava, this one. So you can see here, this is the internal view of human heart. So easily you can find out there that upper two chamber, one is the left atrium is here. ये जो है आपकी left atrium है. This one is the sorry, this is right atrium, this is left atrium. Actually होता क्या है, जो हार्ट की नोच, लोअर नोच जिस तरह मुड़ी होती है, that is the left side. So this is the left atrium, this is left ventricle. Upper one is the right atrium, this is right ventricle. So ये जो chambers होते हैं ये चारों separated होते हैं. That's why we separated by septa. There is a septa. हम अगर बात करें ventricles के बीच में septa है, auricles के बीच में भी ये septa रहता है, तो ये separated. So human heart जो है that is 4 chambered in nature. अगर हम देखें यहाँ पे this is the opening. अब ये जो superior vena cava है actually, और this is inferior vena cava. These are the vein actually. These are the biggest vein. These vena cava actually they bring deoxygenated blood to the right atrium. तो जितना भी deoxygenated blood है, ठीक है, बॉडी में से अपर पार्ट में से कौन लेके आएगा, सुपीरियर वेना केवा, और लोअर पार्ट में से कौन लेके जाएगा, इंफीरियर वेना केवा जो है इसकी ब्लड को कैरी आउट करेगा अप टू द राइट एट्रियम. सो डियर स्टूडेंट, फ्रॉम राइट एट्रियम एक्चुअली इफ यू जस्ट सी हियर देयर आर सर्टेन वॉल्व्स आर देयर. अगर आप देखें यहाँ पे कुछ एक वॉल्व्स होते हैं, बिकॉज मैंने कहा यहाँ पे सेप्टा है एंड इट इज गार्डेड बाय वॉल्व. वॉल्व क्या है, दे आर द रेगुलेटिंग वॉल्व. मतलब ये एक जैसे दरवाजा होता है आपके घर का, कमरे का, टू मेक योर एंट्री इनसाइड द रूम. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी कुछ डोर्स लगे हैं, और ये डोर्स किस तरह के हैं, इन्हें हम बोलते हैं वॉल्व कहते हैं. तो जो राइट साइड की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे जो वॉल्व होता है वो ट्राइकस्पिड वॉल्व कहलाता है. देयर आर 3 फ्लैप्स आर देयर. जबकि ये यहाँ पे जो लेफ्ट साइड अगर देखें, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व है, दिस इज बाइकस्पिड वॉल्व और द मिट्रल वॉल्व. एक्चुअली बाइकस्पिड क्यों बोलते हैं, बिकॉज देयर आर सर्टन फ्लैप्स ओवर देयर. इसके ऊपर क्या होते हैं, फ्लैप्स होते हैं. मोर ओवर हार्ट में से जो भी वेसल्स बाहर निकलेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर ये लेफ्ट एट्रियम है, वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो वेसल निकलती है बाहर, दैट इज एओर्टा. सो दिस इज ऑल्सो गार्डेड बाय ए वॉल्व. इसमें भी वॉल्व है. अगर हम पल्मोनरी आर्टरी की बात करें, ये पल्मोनरी आर्टरी जो है ये कहाँ से निकलती है, फ्रॉम दिस साइड, फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल. इट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स. ये लंग्स को लेके जाती है फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ द ब्लड. तो इट इज ऑल्सो गार्डेड बाय द valve. So let us see the structure of the valve, how the valves are situated. So you can see here, these are the valve, you can see easily. Actually अगर आप यहाँ पे देखें, दिस इज द ट्राइकस्पिड valve है, ये दिखाया हुआ है यहाँ पे. एंड ये जो valve है एक्चुअली ओपनिंग है. देयर आर सर्टन कोर्डेट टेंडिनी, ये फाइबर्स हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं. कोर्डेट टेंडिनी वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट होते हैं. सो यू कैन सी हियर, देखिए देयर आर 3 फ्लैप्स आर. दिस इज द ट्राइकस्पिड वॉल्व और द सेमिल्यूनर वॉल्व्स. सी, ठीक है. तो ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व बेसिकली दे आर प्रेजेंट टुवर्ड द राइट साइड, एंड लेफ्ट साइड में क्या होता है, बाइकस्पिड वॉल्व जो प्रेजेंट रहता है. सो डियर स्टूडेंट, अगर हम ब्लड फ्लो की बात करें, एक्चुअली इफ यू सी दैट हाउ ब्लड फ्लोज. So if you just see here, actually what happened, the deoxygenated blood. अगर मैं deoxygenated blood की बात करें, deoxygenated blood कौन सा blood होता है, जब blood which carry कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, या जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, that is a deoxygenated blood. तो ये जो deoxygenated blood है basically, if you observe here, this comes from this side. This is the superior vena cava. So this superior vena cava, it collects deoxygenated blood फ्रॉम दी हेड पार्ट. ये क्या करती है, हेड पार्ट से क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी आउट करेगी और कहाँ तक लेके जाएगी, एट द पॉइंट ऑफ द राइट एट्रियम. सिमिलरली द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लोअर साइड इट विल आल्सो कम. ये भी क्या होगा, नीचे से आएगा विद द हेल्प ऑफ दिस इंफीरियर वेना केवा
and it is added to the right atrium. Now from right atrium, when the blood pressure increases in the right atrium, ये जो वॉल्व होते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, दे बिकम ओपन. बेसिकली दीज आर द प्रेशर वॉल्व. तो जब ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा तो ये वॉल्व ओपन होंगे और आपका जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है एक्चुअली दैट इज पोर्ड इनटू द राइट वेंट्रिकल. ये सारा का सारा कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में जाएगा. माय डियर स्टूडेंट, एज द प्रेशर इंक्रीजेस इन द राइट वेंट्रिकल ऑल्सो, द वॉल्व जो सेमिल्यूनर वॉल्व्स हैं दे विल बिकम ओपन. द पल्मोनरी आर्टरी ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस राइट वेंट्रिकल. तो यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी से एक्चुअली क्या होगा, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये कहाँ को जाएगा? इट विल गो टू दी लंग्स. ये कहाँ जाएगा? ये लंग्स को जाएगा. ठीक है, इट विल गो टू दी लंग्स पार्ट. ये लंग्स को जाएगा फॉर द प्योरिफिकेशन पर्पस. राइट नाउ व्हेन द ब्लड विल बी बिकम ऑक्सीजनेटेड एट द लंग्स. ठीक है, तो लंग्स में जब एक बार आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, सो दैट इज कैरिड आउट बाय द हेल्प विद द हेल्प ऑफ दिस पल्मोनरी आर्टरी. तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे, अगर आप देखें, सॉरी नॉट पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, ये नहीं आएगा आपका, सॉरी ये पल्मोनरी वेन आएगा. ठीक है, सो ये जो ऑक्सीजनेटेड एक और ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, सो इट विल एंटर इनटू द लेफ्ट एट्रियम. तो ये क्या करेगा? लेफ्ट एट्रियम के अंदर जो है वो एंट्री करेगा विद द हेल्प ऑफ दिस पल्मोनरी वेन. अब फ्रॉम पल्मोनरी वेन एक्चुअली व्हेन ब्लड विल एंटर इन द लेफ्ट एट्रियम and when the pressure will increases, this bicuspid valve will open and this oxygenated blood will enter in the left ventricle. Again left ventricle में जब blood pressure increase करेगा my dear student, तो automatically क्या होगा? It is also connected with this aorta. अगर आप देखें ये जो aorta है, this opens into the left ventricle. तो ये जो aorta है, इस aorta में से actually क्या होगा? The blood will goes to this aorta and from aorta it is distributed टू दी होल ऑफ दी बॉडी. पूरे के पूरे शरीर के अंदर जो है वो ब्लड की जो सप्लाई जो है वो की जाती है. सो दिस इज ए ओवरव्यू हाउ योर हार्ट इज बीटिंग अगेन एंड अगेन. सो इजीली सी हाउ दिस इज द bicuspid valve. This is present toward the left side of the heart between artery and left atrium and the left ventricle. See how these muscles help in opening and closing. This is a semilunar valve. See how they are working. तो माय डियर स्टूडेंट, बेसिकली होता क्या है एक्चुअली, अगर हम वेसल्स की बात करें विच आर एसोसिएटेड विद द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, देयर आर ऑफ थ्री टाइप. वन इज द वेन, वन इज द आर्टरी एंड वन इज द कैपिलरी. सो हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ द वेन इज गिवन. जस्ट मेक ए लुक ओवर इट एंड देन वी विल डिस्कस. सी ये जो वेन्स होती हैं बेसिकली, इफ यू जस्ट सी हियर, दे आर हैविंग द चेक वॉल्व. यहाँ पे अगर आप देखें इनके पास क्या है, यहाँ पे चेक वॉल्व्स हैं एक्चुअली. द रीजन बिहाइंड इज दैट द ब्लड प्रेशर इन द वेन इज वेरी मच लो. एक तो कम ब्लड प्रेशर होता है. अब मैंने तुम्हें कहा जब सुपीरियर वेन, इन्फीरियर वेना के बाद जो ब्लड नीचे से लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी इट विल ब्रिंग टू द हार्ट, सो इट विल बी एक्चुअली इट विल रिक्वायर मोर फोर्स, नंबर वन, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी पुल भी है नीचे से. सो व्हाट हैपेंड हियर, द ब्लड प्रेशर इज लो एंड चेक वॉल्व इज देयर. ये चेक वॉल्व का काम क्या होता है? ये बैक एंट्री को रोकते हैं ताकि ब्लड पीछे ना चला जाए. इसीलिए ये चेक वॉल्व जो है इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं. ये देखिए इस तरह से आपका ब्लड चलता है. हाउएवर इसमें जो ब्लड प्रेशर होता है इसमें काफ़ी हद तक कम होता है. अनदर फीचर ऑफ दिस वेन इज दैट इट इज़ हैविंग ए ब्रॉड ल्यूमन. इनका जो ल्यूमन रहता है, ल्यूमन होता है जो घेरा रहता है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी बिग. अगर हम ये स्पेस देखें, इसका ल्यूमन देखें, इंटरनल स्पेस देखिए जहाँ पे ब्लड फ्लो करेगा, इसका जो ल्यूमन है दैट इज़ अ वेरी बिग इन नेचर. एज वेल एज डियर स्टूडेंट, मोस्टली यहाँ पे जो वेन्स होती हैं, इसका जो यूनिक अगर मैं फीचर की बात करूँ तो वेन्स ऑलवेज कैरी ब्लड टुवर्ड द हार्ट. वेन जो होती है हमेशा ही ब्लड को हार्ट की ओर लेके जाती हैं. और मोस्ट ऑफ द वेन कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. आई सेड मोस्ट ऑफ द वेन कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मैंने सच ए ब्लड विच डू नॉट कैरी ऑक्सीजन, राइट. सो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है मोस्ट ऑफ द टाइम, बट फ्यू वेन्स आर देयर विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू.
but the main criteria is the flow of the blood, yeah, direction of the blood flow. So the direction of the blood flow always from the body to the heart. जो flow रहता है इसका कहाँ को रहता है, body से heart की तरफ रहता है. Clear? So this is the inner side of an artery. Generally artery carry oxygenated blood. Unique criteria की बात करूँ तो artery always carry blood from heart to the body. आपको याद होगा ह्यूमन ब्लड प्रेशर, द नॉर्मल ह्यूमन ब्लड प्रेशर इज 120/80 mm ऑफ Hg. तो ये जो प्रेशर है बेसिकली दिस इज द आर्टीरियल प्रेशर. जो ब्लड का जो प्रेशर हम लेते हैं मेजर करते हैं दैट इज ऑलवेज टेकन द ब्लड प्रेशर ऑफ द आर्टरी. तो यू कैन इजिली सी हियर हाउ द प्रेशर इज वेरी मच हाई, कितनी तेजी से ये जो ब्लड है वो आर्टरीज के अंदर फ्लो करता है. And most of the artery generally carry oxygenated blood, most of the artery, but there is one artery which carry deoxygenated blood too. So यहाँ पे अगर हम arteries की बात करें तो यहाँ पे जो ल्यूमन है, अगर आप इस ल्यूमन को देखें, ये जो ल्यूमन है it is narrow. अगर हम वेन के साथ कंपेयर करें, in case of vein the lumen is very broad, that's why pressure is low. यहाँ पे जो ल्यूमन है that is the narrow, so the blood pressure is very high here, and it is about, in case of healthy man, it is about 120/80 mm of Hg. 120 क्या है basically, it is a systolic pressure. Systolic का मतलब क्या हुआ, when heart contract, जब हार्ट कंट्रैक्ट करेगा तो उस दौरान आर्टरीज के अंदर प्रेशर ज़्यादा रहता है, एंड इट इज़ अबाउट 120 mm ऑफ Hg. ठीक है, मर्क्यूरिक प्रेशर के बराबर रहता है ये. एंड व्हेन द हार्ट रिलैक्स, जब हार्ट रिलैक्स करता है, जब रिलैक्स करता है तो प्रेशर जो होता है आर्टरी में वो डिक्रीज हो जाता है. And this is about 80 mm of Hg. So dear student, one of the disorder I want to discuss with you, that is the atherosclerosis. आपने सुना होगा कि जिनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है उनको ज़्यादा तेल वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए, फैट वाली चीज़ें नहीं लेनी चाहिए बेसिकली. तो एक डिसऑर्डर है दैट इज कॉल्ड एज द एथेरोस्क्लेरोसिस. So actually what happened in case of the atherosclerosis, the fat actually it bind with the calcium ion and it form a plaque. तो arteries जो होती हैं वो क्या बना देती है, plaque बना देती है arteries के अंदर. And when this plaque become increased, what happened, the blood pressure increases and maybe possibility that this plaque totally block the artery. और अगर ऐसा केस हो जाए, and especially in case of coronary artery which carries oxygenated blood to the heart, if this plaque is formed in the coronary artery, that may lead to the dysfunctioning of the heart or the non-functioning of the heart, and that is called as the that can lead to a disorder that is called as the heart attack, जिसे हम क्या बोल देते हैं, हार्ट अटैक के नाम से जानते हैं. And at last I want to say that, dear student, this heart is a very important organ of the body which transport oxygen. It is a pumping machine which transport oxygen, which transport carbon dioxide, which transport many material to the different part of the body. So please and please take care of your heart. Thank you.